Okay, we are live. Okay. I'll put it on recording as well. Okay. So before we start, I want Rashmi ma'am to say about our organization, as both of them are very new and they are curious to know about IIW and what IIW is been doing throughout these years. So may I have you on the screen? That's a surprise. Yeah, I didn't expect you to call me on screen. But namaskar to everybody. And this is Inspiring Indian Women. We've been 8 years old now, and we are very, very active in UK and now touching base in India as well. And it's all about supporting and connecting women globally. It's all about uplifting souls, and it's all about bringing opportunities to the talent, extraordinary dreams, ladies who want to do something or has issues, or connecting through inspiring stories and helping, supporting with whatever way we can possible. And it's all about positivity and togetherness. And this is what we are doing. Any idea? We are there behind you. Please soar high. We'll help you reach there. That's our motto and motive. Thank you so much, Rajni. Over to you. Thank you, ma'am. So well said, ma'am. It's all about connecting, and it's all about uplifting one another and standing with one another. So today I'm going to start our session on women safety and responsibility, and also to know about our rights, why we need the rights. So with this, I'm going to start our session. Namaste, everyone. I'm Rajnisha, the Deputy Director of Inspiring Indian Women from the Guwahati chapter, working with IIW since 1.5 years and learning so many things from our mentor, Rashmi Mishra. So ladies and gentlemen and the esteemed guests, welcome to this pivotal event focusing on women's safety and responsibility. Today, we gather to address crucial effects that has been suffered by our women on the daily basis. It is imperative that we come together to discuss the constitutional framework, legal obligations, and societal responsibilities to ensure a safer environment for women. Let us pave the way for actionable solutions, empower change, and create a society in which every woman feels secure, respected, and valued. With this, we have two very talented ladies in our panel who has created an example to the society that women are women's best friend, and they have stood behind every woman who has suffered till date. Let me introduce you to our guest speaker, Bedomita Deb. She is an advocate of Guwahati High Court. She is also an educator, a social activist, and she has helped many women with her legal advice. So, ma'am, welcome to the show. Thank you. We have another very beautiful lady, Dr. Sonali Chakravarti. She is a motivational guru, a vlogger, a poetess, a stage artist, and an anchor. She is the founder, member, and director of Swayamsiddha, a mission with a vision, an NGO. It is a cultural group of married women which works perpetually for women empowerment and also for their independence in a positive mannerism. It also works especially for the homemakers in order to shape their lives by providing them a positive direction and change as well. This organization, also under the guidance of Dr. Sonali Chakravarti, is working immensely to keep the middle-aged women out and away from the physical and mental challenges like middle age crisis, depression, frustration. They are generally tend to grow through. So thank you so much, ma'am, for coming here and
Today, we are going to highlight about the condition of women throughout the country. So we'll start our session with our guest speaker, Bedomita Deb. I have some questions for you, ma'am. So we'll start with you, but before that, I would like to say a few things about the condition of women. In India, we have seen that every woman are suffering. Some are suffering at home, some are suffering outside. They are suffering in their workplaces. They are abused. They are harassed by their own relatives, friends, and colleagues. So for that, we are here today to ensure women that law and constitution is with us. And to highlight those points, Dr. Sonali Chakravarti and our advocate guest, Bedomita Deb, will tell us some important points on how this organization and constitution can benefit us. Bedomita ma'am, I'm coming to you. I have some questions for you. So I'll start with you as you are our guest speaker. Okay. Can you tell us what are the constitutional provisions of safety and security for women in India? What are our basic rights? Thank you, Rajni, for bringing me on board and giving me an opportunity. I'll try to share the little bit of knowledge that I have. If it can help anybody around, I'll be very happy. Now, you see, if you go to the preamble of our constitution, there itself we have a very important line where it is said that equal rights for both man and woman. So if you go to that, why is this given? This is given because we all become a part of the society and help effectively in the functioning of the country. If you go through it's a very vast chapter. And if I take the constitution, all of you know it's a very, very huge thing. But let me put some of them into perspectives. First, let's say Article 14, which embodies what? Equality before law, equal protection of law. So women should never, go back or think twice before seeking the help of law in distress. There are ample amount or number of laws that can help women if they are little bit aware, little bit conscious, and little bit outgoing. We have a problem in Indian society. We love to suffer silently. What will people say? What will the society say? What will this and that? These are the things that stops us from coming out with our problem. And hence we suffer all the more. This should not be done. I appeal to all women. Any problem. There are many NGOs, there are a number of people, who can help you. But you have to say, until and unless you ask for, we do not get anything in their life. True. A child also has to ask for the milk. Then the mother remembers that, oh, I have to leave the work and feed my child. So if you suffer silently, nothing will happen. Then we come to it also, Article 14 prohibits discrimination on the ground of religion, sex, etc., etc. Article 15, 1 and 2, prohibits the state to discriminate between a male and a female and other things, Article 15.3, this gives state special provision to make law for the protection or protecting the interest of women and children. Then again, Article 15.4, it also helps in promoting the interest and welfare socially and educationally for the backward classes of the society. So backward classes women, they need to be given legal awareness through legal awareness camps, etc.
There are so many articles, and I would not like to go in elaborate because it will only lead to confusions. Now, I would like to stress on one article, Article 51A. This clause is very relevant in today's world, as it tells us to renounce or do away with any practices that are derogatory to the dignity of the woman. Today, the dignity of the woman is at stake. All women have to come out and stand beside each other. Only then they can fight for their dignity. They have to learn to fight for their dignity. Now, I won't go constitutional wise or article wise, because most of them are relevant. You know that there are reservations for women, so you should come out and participate in the governing of the country, be a part of the panchayat or other, where you can help other people. Now, if you go to legal, the crime against women can be broadly classified into two categories. The crime undefined under Indian Penal Code is rape, kidnapping and abduction for different purposes, homicides and dowry-related deaths and their attempts, torture of both mental and physical, which comes under 498A. Then molestation, 354 IPC, sexual harassment, 509 IPC, importation of girls up to 21 years. This is very rampant. This is one area I think we should, people should, NGOs or whoever are working should work in a very big way. Importation of girls. Now, you talked about sexual harassments in workplace. Now, there is a law which ensures the safety of women at workplace. Any workplace, whether it's a private or a government, there need to be a panel or a group which comprises of female members. Even in schools, even if there is a sir, there has to be a ma'am also. They need to form a committee through which workplace harassment can be taken care of. Workplace harassment has harassment at workplace is what to say. There can be sexual harassments, there can be abuses, there can be, molestations, assaults, so many things are there. So the employees need to participate in the workplace as a family and ensure that the ladies, the girl, the women working there are taken care of. Very well said, ma'am. I think our audience has got a fair idea that what their right is and what they should stand for. I'll get back to you again, but now I would like to ask Sonali ma'am about what do you think are the biggest obstacles facing women when it comes to ensuring their safety and security in today's world? Sonali ma'am, can we have you on the screen? Yes. Yeah, here you are. नमस्कार. मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगी. Yeah, great. क्योंकि आपको शायद हमारे देश के 15-20 हजार महिलाएं सुन रही हैं जो अधिकांश हिंदी समझती हैं, जो मिडिल क्लास से हैं, और उनको समझाना ज्यादा जरूरत है. Yes. मैं अपनी बात हिंदी में रखना चाहूंगी. मिसेस रश्मि मिश्रा जी ने बहुत अच्छी कुछ बातें कही कि स्टैंडिंग विथ वन अनदर, उसके बाद पॉजिटिविटी, और सबसे बड़ी बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स. तो मैं जो काम करती हूँ, मैं उसके बारे में बताऊं. आपके क्वेश्चन से वो बात जुड़ेगी
कि हम लोग महिलाओं को ये समझाते हैं पहले क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक हम खुद का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि हमारी इज्जत करो। और हम ऐसे दुनिया में हैं कि हमें हमारी इज्जत करने के लिए आज लोगों को बोलना पड़ता है। इसके पीछे हमारे लाखों वर्षों का इतिहास है, लेकिन हम उसमें 3-4 ऑब्स्टेकल्स जो आपने पूछे, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आत्मसम्मान। महिलाएं खुद का सम्मान ही नहीं करती और इसी वजह से वो परिवार में जो बचपन से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है कि बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजेंगे और बेटी को सरकारी स्कूल में भेजेंगे, बेटे के दूध में मलाई होगी तो बेटी के दूध में नहीं होगी। उसके साथ वो बेहद हास्यास्पद विज्ञापन आते हैं कि माँ मुझे पैदा होने दो, मुझे जन्म लेने दो, मैं भैया के पुराने किताबों से पढ़ाई कर लूंगी, घर का रूखा सूखा खा लूंगी। ऐसे विज्ञापनों पे रोक लगना चाहिए। हमें लगता है कि स्त्री इस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है प्रकृति की, और हमारा एक टैग लाइन है स्वयं सिद्धा का कि हम आधी दुनिया नहीं है। सब लोग कहते हैं कि ये आधी दुनिया का सच है। हमारा कहना है कि हमारे नाम के साथ ये आधा शब्द मत लगाओ। हम आधी दुनिया नहीं है, हम वो पूरी दुनिया है जिसने आधी दुनिया को जन्म दिया। ये बात पहले हमें खुद को समझानी होगी और फिर अपने परिवार के सभी पुरुषों को समझाना होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे ये समाज और देश और फिर दुनिया तक पहुंच पाएंगे। तो पहले हमें खुद को बताना होगा कि हमारा सम्मान सबसे अधिक हो। मैं अगर एक स्त्री जन्म लेकर एक घर में पैदा हुई हूँ तो घर का सर्वश्रेष्ठ साहित्य, सर्वश्रेष्ठ भोजन, सर्वश्रेष्ठ संगीत, उन सब चीजों से मुझे पाला जाए। लेकिन हमारी मानसिकता इतनी गहरी है, पिछली जड़ें इतनी गहरी है कि आज ये लाखों प्रोग्राम्स के बाद, इतने जैसे मैडम ने कहा, वेदुमिता मैडम ने कहा, इतने एनजीओ के बाद लोग खुद अपनी प्रॉब्लम लेके जाते तक नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम तो तब जाएंगे जब उनको इस प्रॉब्लम को लेके जाने की हिम्मत होगी। हमारी संस्था काम करती है महिलाओं को मानसिकता बदलने के संस्कार देने की, कि हम अपने बेटों को एक संस्कार शुरू करें कि दुनिया यहाँ तक शायद अपने सबसे वर्स्ट कंडीशन में है, यहाँ से तो हम कुछ सुधार कर सकते हैं। तो अपने बेटों को अधिक से अधिक अपने साथ रखे, अपने बेटों को स्पर्श करे, उसे समझाए कि माँ का स्पर्श कितना मंगलमय होता है। उसे ये बताएं हम कि जो बच्चा अपनी माँ का सम्मान करेगा वो दुनिया में किसी और स्त्री का अपमान नहीं कर पाएगा। इस मानसिकता से हम लोग काम करते हैं। दूसरी ऑब्स्टेकल्स है जनसंख्या जो बेटों की आशा में बेटियों की लाइन लगाने वाली प्रॉब्लम है, वो हमारे लिए आज सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे जो स्लम एरियाज है, हम लोग स्लम एरिया में काम करते हैं, वहां किसी किसी के 5 या 6 बेटियां हैं, उसके बाद एक बेटा है, और पापा रिक्शा चलाते हैं। वो उन बच्चियों को 12-13 साल की उम्र में ही किसी भी शराबी के साथ, किसी भी जो इसके लायक नहीं है उसके साथ शादी करा के अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये लड़की को कैसे भी मैं घर से निकाल दूं। तो आप बताएं, वो बिना पढ़ी लिखी 13-14 साल की बच्ची उस घर में मार खा रही है, तो वो इस उम्र में कहाँ कंप्लेन करेगी, और कंप्लेन करेगी तो वहां से वो जाएगी कहाँ। तो ये जनसंख्या पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो मैडम ने कही कि डिग्निटी, अपनी डिग्निटी हम तभी पहचान पाएंगे जब हम खुद को लगातार निखारेंगे। हम विवाह करने के बाद सोचते हैं कि हमने गंगा नहा लिया, अब हमें ना पढ़ाई करने की जरूरत है, ना अखबार देखने की, ना हमारे काली साड़ी में प्रोटेस्ट करते वक्त मुझसे वहां मौजूद बहुत सी महिलाओं ने ये पूछा कि मणिपुर में हुआ क्या। उनको पता नहीं, क्योंकि वो नहीं देखती हैं, ना न्यूज पढ़ती हैं, ना किताबें पढ़ती हैं, ना कुछ देखती हैं। तो उनको, और वो सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसी महिलाएं थी। तो हमारा कहना है कि अपनी डिग्निटी तभी बढ़ेगी जब हम खुद को एजुकेटेड रखेंगे, खुद को नई चीजों के साथ अपडेटेड रखेंगे, ऐसे बढ़ा पाएंगे हम लोग। उसके बाद रेस्पेक्ट जब हम देते हैं और वही रेस्पेक्ट हमें मिलता है। हम सिर्फ महिला होने के नाते सम्मान की अधिकारी नहीं हो जाती, हमें खुद की योग्यता साबित करनी होगी। अपने साथ, हमारे साथ जो लड़के हैं, जो जिन पुरुषों के साथ हम रहते हैं, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए
खुद को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि मुझसे ऐसे बात मत करो। यदि घर में पिता माँ का अपमान करते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि ऐसे बात हमसे मत करो। ये बात घर के बड़ों को कहना चाहिए, वाइफ को कहना चाहिए, घर की मम्मी को कहना चाहिए, घर के दादाजी को कहना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आजकल गालियां दी जाती है। अधिकतर गालियों में माँ के नाम का इस्तेमाल होता है, बहन के नाम का, और आजकल तो बेटी के नाम का भी। इन पर भी इमीडिएट कोई कानून बने, इन पर रोक लगाई जाए। ऐसी गालियां देने पर फाइन और जेल की सजा के प्रावधान हो। इन गालियों से लोग महिलाओं को देखने की दृष्टि बदल देते हैं। महिलाओं के प्रति जो देवी का सम्मान पहले आता था, हमें देवी बनाने की जरूरत नहीं है, हमें मनुष्य ही रहने दे, यही हम चाहते हैं। लेकिन इन गालियों से वेब सीरीज में भी हमें कोई एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। चीजें लोगों का दिमाग खराब करती हैं, तो उसके साथ महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता बदलती है। अभी ये कहना चाहूंगी आपके अगले सवाल तक। आपने बहुत खूबसूरत से अपनी बातें रखी और सच में ये बहुत जरूरी है कि हम पुरुष प्रधान को भी ये समझाए कि औरतें देवी ना हो, लेकिन औरतें भी इंसान है और उनको इंसान की तरह रहने दो। आपकी बात बहुत अच्छी लगी मैम, हम फिर आप तक आएंगे। हम अभी थोड़े और लीगल चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। हम फिर अपने बेदमिता मैम के पास आते हैं और उनसे जानते हैं कि हमारे देश में जो भी औरतें मतलब कुछ भी अगर उनके साथ बुरा होता है, जैसे कि कहीं वो अब्यूज हुई या उनको किसी ने छेड़ा या उनके साथ किसी ने टॉर्चर किया, इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द इमीडिएट एक्शन इफ अ पर्सन, इफ अ लेडी हैज बीन अब्यूज्ड और हैज बीन harassed in her workplace? Okay, here I will mix Hindi and English because यहाँ पर फिर again वो जो मैम ने बताई है ना, dignity, self respect, ये आती है। और ये बहुत एक मुद्दा है जो एवरीवेयर आजकल हर एक जगह, हर एक वर्क प्लेस बोलिए, घर बोलिए, हर एक जगह पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, कोई भी आपको बेइज्जती करे, असॉल्ट करे, मॉलेस्ट करे, आपके मतलब क्या बोलते हैं इसको, श्लीलता हानि या जो भी बोले आप, वो सब करे, आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन जाके एक एफआईआर दर्ज करें। फर्स्ट, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद को रेस्पेक्ट करेंगे। आपका खुद का डिग्निटी, आपका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आपको ये करना है। जाके पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर कीजिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक वायलेंस में आए या वर्क प्लेस हैरेसमेंट में आए या कहीं भी आए, कहीं ना कहीं आपको जाके कंप्लेन करना है। आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए, एक कॉपी उस कंप्लेन का, उस एफआईआर का एक कॉपी आप अपने पास रखिए, सो दैट उस पर एक्शन क्या हो रहा है आप जान पाओ। अगर उसमें एक्शन नहीं हो रहा है तो आपके पास पूरा राइट है, वो एप्लीकेशन लेके आप कोर्ट में जाइए, सीधा मजिस्ट्रेट के वहां जाकर फाइल कर दीजिए। वुमेन कमीशन में, स्टेट वुमेन कमीशन है, उसमें जाकर दीजिए कि देखिए मैंने ये फाइल किया, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। यही आपका फर्स्ट काम होना चाहिए, ना कि आप चुपचाप सह के बैठ जाएं। और कुछ चाहिए आपको मैम, और कुछ क्लियरिफिकेशन ऑन दिस? एक बात और कहना चाहूंगी, अगर किसी औरत को या किसी लड़की को कोई बुरी नजर से देखता है लेकिन उन्होंने कभी कोई कमेंट नहीं किया, we women have a very good six organs, we can sense that if someone is looking at us with bad intention, we can sense that. So in that case, is there any law or we can take any action? If you can highlight on that point. Can you repeat your question please once more? It was cracking. Okay. If someone is looking at us with bad intention, अगर हमें कोई देखता है गलत इरादों से, because we women have a very good sixth sense, we can sense that if someone is looking at us with bad intention, we can sense it. So if we are not feeling comfortable in that particular point, can we go to
police station, or can we have any legal complaint against that person, because that person hasn't made any bad comment on it, on the girl or the lady, but the way he is looking is not good. So is there any law? Look, at the regarding first that? instant, as the first instant, हम लोग बोलेंगे कि पहली बार आप नजरअंदाज कीजिए एक दो बार, but if you think it is becoming a regular process, of course you can complain, because this also comes under abuse. This also comes under abuse. Abuse मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ गाली ही हो. Your looks also is an abuse. 498A was a very good law made for women, where all this that Sonali ma'am just said ना, जो कोई गाली देता है, कोई कुछ बोलता है, माँ बेटी का गाली देता है. 498 was such a law जिसमें आप एक हस्बैंड जोर से वाइफ को कुछ बोल भी नहीं सकता, but this was abused. Abuse करके इस लॉ का सैंक्टिटी खत्म कर दिया गया है. अभी पहले जैसा उसका स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिया जाता, शक के नजरिए से देखते हैं 498. पहले तो ऐसा होता था 498 मतलब चलो अरेस्ट करो, अंदर डालो, पहले अंदर डालो, बाद में बात देखी जाएगी. आजकल वो नहीं है. But yes, you can of course take up, because man's intentions are known. You know, हम लोगों को बताया जाता है, बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है. Bad touch, good touch, bad look, good look, बहुत जरूरी है. We have to open up. So these are all, you know, everybody knows, even the law knows that woman has a sixth sense. They can understand the intention of man by the touch or a look. So this can always be, you know, he can say, but the problem is what, you know, इसमें आपका कोई सबूत नहीं है. आप सिर्फ बोल सकते हैं, पुलिस उसको डांट देगा बुला के, but you don't have a proof. You know, but most of the cases, circumstantial evidence may be there. If you have 2-3 people who can witness for it, then it can be a circumstantial evidence can be there. Otherwise, but my question is, why can't we look eye to eye? कब हम लोग सीखेंगे? कब सीखेंगे हम लोग? कब तक पुलिस आपके पीछे पीछे, एक आदमी के पीछे एक पुलिस तो नहीं लग सकता ना. आपको खुद का रक्षा खुद को करना सीखना चाहिए. कब तक ये चलेगा? ये सोनाली मैम का भी यही क्वेश्चन है, कब तक चलेगा? कब हम लोग निकल के रहेंगे? जैसे रश्मि मैम ने बोला है, हम लोग एक दूसरे के लिए खड़ा होना है. आओ ना, तभी तो खड़ा होंगे. आएगा नहीं तो खड़ा कहाँ से होंगे? खाली रास्ते में तो खड़ा नहीं हो सकते. वही हमको सबको बोलना है कि कम आउट, दो ना दो चाटा तमाच मारो. Nothing will happen to you. You give 2 slaps to a man, nothing will happen. Police cannot do anything. Give 2 slaps to that man, वहीं पर 2 चपाट मारो, उसके बाद देखी जाएगी. आओ मेरे पास, उसके बाद हम संभाल लेंगे. वेरी वेल सेड मैम. तो अभी नारी शक्ति को जगाने का वक्त आ गया है. बहुत हो चुका, हर जगह पे, हर एक स्टेट में हम अपने देश में आज सुरक्षित नहीं है. ये अच्छी बात नहीं है. हम दूसरे देशों के सामने क्या सेट कर रहे हैं, दैट आवर हाफ पॉपुलेशन इज नॉट सेफ. तो आज आपकी बातों से बहुत सारे महिलाओं को ये प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, हमारी बातें भी सुनने के लिए कोई है, हमारे लिए भी होने के लिए कोई है, हमारे साथ भी कोई है, जिससे हम अपनी बातें कह सकते हैं और हम अपने लिए खड़ा हो सकते हैं, हम अपने लिए आवाज उठा सकते हैं. Right. मैं फिर से सोनाली मैम के पास आना चाहूंगी. मेरी एक क्वेश्चन है कि हमने तो लॉ की बातें बोल ली, हमने अपने लिए खड़े होने की बातें बोल ली. ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास इनकम नहीं है. आज अगर उनको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े तो उनका फर्स्ट थॉट आता है, हाउ टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द लॉयर. इस बात पे क्या आप रोशनी डालेंगे कि हम इस चीज से कैसे लड़ सकते हैं?
और मैं इस बात पे और ज्यादा पॉइंट्स हाईलाइट करने के लिए मैं वेदोमिता मैम को भी बोलूंगी, बट मैं पहले आपसे सुनना चाहती हूँ कि हाउ टू एम्पावर women to take their responsibilities, that you should stand for yourself. The voice should come from yourself first, and then we are there to help you. So, ma'am, क्या आप इस पे रोशनी डालना चाहेंगी? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात कि पिछले कुछ सालों से हम महिलाएं सिर्फ लड़ रही हैं। कभी बुरी नजरों से लड़ रहे हैं, कभी आर्थिक समस्याओं से लड़ रहे हैं, कभी मानसिक टॉर्चर से लड़ रहे हैं, कभी ऑफिस का सामाजिक, सिर्फ लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते शायद हम लोग अपनी जो नेचुरल ब्यूटी और कोमलता है ना, उसको खो चुके हैं। आजकल हर कविता में यही बोला जाता है कि लड़कियों तुम लोग भी तलवार उठाओ, सबको मारो, अब कोई कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, द्रौपदी तुम ही गला दबा दो, तुम ही मारो इसको, अब तुम ब्यूटी पार्लर मत जाओ, तुम कराटे क्लास जाओ। फिर बात वहीं आ जाती है घूम के कि अभी भी हम परेशान हैं लड़कों से, लेकिन हम ही को सुनना है। अभी भी लड़कियों को ही इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि तुम बचने के लिए ये करो, ये करो, ये करो। तुमको काट के 35 टुकड़ों में फ्रिज में रखा जाता है, तो तुम उसके साथ रहने क्यों गए? तुमको तंदूर में जलाया गया, तो तुम उसके साथ रहने क्यों गए? तुम लव जिहाद हुआ, तो तुम उसके साथ प्यार में क्यों पड़े? अरे कोई कम से कम लड़कों को कुछ सिखाएगा, कोई लड़कों को इंस्ट्रक्शन दो। अब ये समय आया है कि हमें लड़कों के ऊपर ये सारे समाज के बंधन ना अब हमें चेंज कर देने चाहिए कि रात के 8-9 बजे के बाद लड़कों का निकलना बंद करो घर से, दुनिया अपने आप सेफ हो जाएगी। हमें ऐसा कोई सिस्टम लाना चाहिए, उनको मॉरल साइंस में पढ़ाना चाहिए। जापान की जो पढ़ाई की टेक्नोलॉजी है कि वहां 3 साल के बच्चों को भी सिखाया जाता है कि अगर आप बस में हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आपको सीट छोड़ देना है, अगर कोई महिला आ रही है, कोई बुजुर्ग आ रहा है, तो आप उसको पहले मदद करके बिठाइए। ऐसा कोई शिक्षण सिस्टम हमारा नहीं है। उसके बाद हमें कुछ दिन पहले भिलाई में मिसेस किरण बेदी आई थी। डॉक्टर किरण बेदी से मिलना और उनको सुनना बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि हर चीज का कंप्लेन, FIR, कोर्ट में केस लड़ना ये तो बाद में आता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी वहीं कहीं है। हमें अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, जो शुरू से हम बोल रहे हैं ना कि विमेन एम्पावर्ड विमेन, एक जो विमेन सपोर्टिंग विमेन, हमें एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कर सके। हम किसी ऑफिस में हैं तो हमारी महिलाओं का एक गैंग होना चाहिए, किसी स्कूल में है तो टीचर्स आपस में यूनाइटेड होना चाहिए। जब भी आप देखिए, आप किसी अकेले जानवर को पत्थर मार सकते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर आप नहीं मार सकते, क्योंकि वो सबके सब आपके ऊपर झपट पड़ेंगे। तो हमें अपना एक ऐसा सिस्टम रखना पड़ेगा कि हम हर बात में कोर्ट में केस लड़ने के लिए समय, स्थिति, आर्थिक हालत सब कुछ हमें सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई, किसी ने किसी को गलत ढंग से देखा या किसी ने किसी को गलत ढंग से छुआ, क्यों ना 5-6 महिलाएं मिलके उस आदमी के केबिन में जाए या टेबल पे जाए और बोले कि हाउ डेयर यू। बिल्कुल एक साथ 5 महिलाएं एक साथ जाए तो उसको कोई भी आदमी डरेगा। कोर्ट तो बहुत लास्ट के बाद है, कोर्ट में जाने से मैडम देव जैसे लोग हेल्प के लिए बैठे ही हैं, पर सबका कंडीशनिंग ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कोर्ट तक जा सके। एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके साथ बात क्या है, 498A के बहुत सारे मिसयूज भी हुए हैं, बहुत सारे, लॉट ऑफ, पूरा परिवार। तो वो मिसयूज के कारण अब इसको थोड़ा सा ढीला किया गया है, क्योंकि हम किसी को भी थप्पड़ मार दे, हम रोड में कोई लड़का किसी लड़की को थप्पड़ मार दे तो वो बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन अगर लड़की लड़के को थप्पड़ मार दे तो इट्स ओके हो चुका है। लेकिन हमेशा हर जगह हम लड़कियां एकदम सही है ऐसा भी नहीं है। मैडम देव जानती होंगी, क्योंकि मैं एज अ जर्नलिस्ट भी काम करती हूँ, जितने अब्यूज के किस्से लगते हैं, मेरा 4 साल से मेरा शारीरिक शोषण हो रहा है। 4 साल से कोई किसी को जबरदस्ती कैसे शोषण कर सकता है? ये तो वही बात हुई कि आज आपका ब्रेकअप हो रहा है या किसी ने देख लिया तो आपने लड़के के खिलाफ कंप्लेन कर दी और सारे कानून अभी लड़कियों की तरफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां
हमेशा सही है। एक मॉरल साइंस है जो हमें लड़के लड़कियां दोनों को एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार है घर की माँ का शिक्षित होना और बच्चों को संस्कारित करना, बचपन से एक जैसा उनको पालना, तब एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। हर चीज का केवल हम लोग अगर लड़ते रह जाएंगे तो एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ रही है। जब हम लोग ने अभी कुछ दिन पहले एक एसडीएम का केस देखा तो लोगों के स्त्रियों के प्रति जो नफरत भरी बातें आई, मैं बहुत हैरान हुई कि हमें इनके साथ रहना है समाज में। लड़कियों को देखने का नजरिया इतना खराब, मुझे आश्चर्य हुआ क्या इनकी माताएं नहीं है घर में, इनके घर में क्या स्त्रियां नहीं है, इनके घर में बेटी या पत्नी नहीं है। ये लड़कियों के बारे में ऐसी भाषा सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो लोग सामने अपने मुंह जबानी कितना बुरा बोलते होंगे। तो इस मानसिकता को बदलने में हमें पूरे परिवार को साथ देना पड़ेगा। मैं हमेशा परिवार की बात इसलिए कर रही हूँ, एक भी परिवार ठीक हो जाता है तो हजारों की भीड़ में एक आदमी तो ठीक निकलेगा। तो ये धीरे धीरे परिवार को साक्षर करना बहुत जरूरी है। और शिक्षित और साक्षर एक अलग बात है, पर मैं साक्षर कहूंगी क्योंकि आज भी परिवार में लगता है कि जब पापा खाना खाए तो बाकी लोगों को शांत रहना चाहिए, मम्मी को उनकी सेवा करनी चाहिए, सबको चुपचाप रहना चाहिए। ऐसे हजारों परिवार हैं। ये मानसिकता बदलनी होगी। मैं स्त्री हूं इसलिए मेरे पास दिमाग नहीं है, ये गलत बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक दिन मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था तो उसकी बहुत तारीफ आई थी। तो मुझसे मेरे ऑफिस के एक सीनियर उसने कहा कि मैं जब ऑफिस पहुंची, उन्होंने कहा आप ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने एक बार थैंक यू कहा, उन्होंने दोबारा भी कहा कि आपने वेट लूज किया है क्या, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस तो 2 ही बार सुन पाऊंगी ना क्योंकि मैं हूं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने आज सुबह मेरा आर्टिकल पढ़ा, ऑफिस में इतने फोन आए, आपको कैसा लगा मेरा आर्टिकल? उन्होंने कहा नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा मेरे इस चेहरे के ऊपर ना मेरा एक दिमाग नाम की चीज है, अपनी नजर ऊंची उठाना सीखिए, मेरे दिमाग को पहले परखिए, आप देखिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तब आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। मैं कैसी दिख रही हूँ मुझे पता है, मुझे आपके कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं। तो उस दिन के बाद 15 साल उन्होंने मुझको और कुछ नहीं कहा। ऐसे जवाब देना भी आपको आना पड़ेगा। पुलिस तो बाद में आएगी, पहले खुद हिम्मत रखो। मैं ज्यादा बोल गई क्या? मैं आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत अच्छा कहा कि पहले खुद हमें जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद हम लॉ ऑर्डर और ये सब के बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन ऑन स्पॉट। बाद में कंप्लेन करके फायदा नहीं है। ऐसा बहुत पुलिस भी तो फिर नारी वाला काम ना खुद अपने हाथ में लो, एकदम बस। एग्जैक्टली। तो ऐसा भी बहुत जगह में देखा जाता है कि जब एक लड़का, बच्चा मैं नहीं कहूंगी, मैं लड़का ही कहूंगी, जब एक लड़का किसी लड़की का शोषण करता है और जब उसको पुलिस पकड़ती है तो उसका प्रोटेक्टर सबसे पहला उसका माँ होता है। ये कितना गलत है। वो भी एक औरत है, ठीक है, खुद का बच्चा है तो सबको दर्द होगा क्योंकि 9 महीने उन्होंने भी पेट में रख के उसको जन्म दिया, लेकिन शिक्षा तो नहीं दी, जिस कारण आज उसने इतना बड़ा एक घिनौना हरकत किया है। उसको बचाने के लिए उसकी माँ रोती बिलखती पुलिस स्टेशन जाएगी, कोर्ट जाएगी, उसकी माँ वो हर एक कोशिश करेगी उस लड़के को बचाने के लिए। लेकिन जिसका शोषण हुआ है वो बेटी भी तो किसी की बच्ची है, उसको भी तो उसकी माँ ने 9 महीने अपने पेट में रख के फिर उसको पैदा किया। जी ऐसा ही एक उदाहरण, जी आप बोले। हाँ नहीं आप बोलिए। ऐसा ही बिल्कुल एक उदाहरण ये भिलाई में भी हुआ है, और ये युगों का कंडीशनिंग कि लोगों को लगता है कि अगर मेरा बेटा हुआ है तो मैंने अपने से बेटर एक प्रजाति, एक बेटर स्पीशीज को जन्म दिया है, क्योंकि हमें ऐसा ही सिखाया गया है कि लड़का होने पर ही खुश होना है। लड़की तो बस लड़का नहीं हुआ इसलिए हो गई, अब हो गई तो मान लो लक्ष्मी आई है। क्यों मानना है? मैं लक्ष्मी नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल मनुष्य हूं, ये बन के मुझे क्यों नहीं पाला जाता? तो इसी कंडीशन में हुआ है। और ऐसी घटना भिलाई में भी हुई है कि एक लड़की ने एक लड़के को प्रपोज किया, 18-19 साल के बच्चे हैं, उसने मना कर दिया और लड़की बहुत अच्छी पढ़ाई में थी, उसने उस लड़की को मर्डर कर दिया।
और 2 दिन बाद वो पकड़ाया, उसने बताया ये स्पॉट है, ये मर्डर वेपन है जो मेरे गाड़ी के अंदर है। ये सब के बावजूद उसके घर वालों ने ऐसा स्ट्रॉन्ग वकील किया, ऐसा स्ट्रॉन्ग सब ये अपना काम किया कि उस लड़के को 1 ही महीने के अंदर जमानत मिल गई। और आज 4-5 साल से लड़की के घर वाले सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, और वो सनी देओल जैसे तारीख पे तारीख मिल रहा है, क्योंकि और ये हम लोग पूरा भिलाई जानता है कि वो लड़का मर्डरर है। तो आपने बहुत अच्छे प्रश्न पे उठाया। इस समय उस लड़के के माता पिता, परिवार, समाज, सभी लोग अगर बोलते कि लड़के ने गलत किया, वो पढ़ाई में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, उस लड़की के पीछे रोज जाता था, वो अगर उन लोग अगर बोलते कि इसने इतना गलत किया कि इसका बाहर आना उचित नहीं, तो हमारे समाज से एक क्रिमिनल कम हो सकता था। लेकिन घर वाले इसको सपोर्ट नहीं करते। बहुत पहले एक एडवर्टाइजमेंट आता था कि मोर वुमेन इन एवरी प्लेस, चाहे वो ओला ड्राइवर हो या किसी चीज का ड्राइवर हो या पिक्चर हॉल में हो, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा विमेन को नौकरी देंगे तो विमेन को ज्यादा सेफ्टी फील होता है। जैसे अभी देव मैडम ने कहा कि बस में भी अगर एक जेंट्स टीचर है तो एक लेडी टीचर भी होना ही चाहिए स्कूल बस में। ऐसे ही अधिक से अधिक लड़कियों को जॉब पे और हर जगह पे जाना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब हम अपनी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन भी बढ़ाएंगे। तो जब हमारी एजुकेशन उस लायक होगी तो हम निश्चित रूप से उस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। हम लड़कियों के पढ़ाई पे खर्चा ही नहीं करते, उससे कहीं दुगना हम उसकी शादी पे खर्चा करते हैं। हम उसकी पढ़ाई पे उसका आधा भी खर्चा करें तो हम लोग बहुत बेटर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ मैं एक और कौन सी बात, एक पॉइंट मैं भूल रही हूँ, आरक्षण वाली बात कि हमें रिजर्वेशन चाहिए क्यों। मैं हमेशा कहती हूँ हमें आरक्षण नहीं, अधिकार चाहिए। इस समाज में, इस पृथ्वी पर 2 ही जातियां होती है, एक स्त्री और एक पुरुष। उसमें हमें साफ साफ बसों के अंदर लिखा रहता है कि यहाँ पे विकलांगों और महिलाओं के लिए आरक्षित सीट। इसका क्या अर्थ होता है? क्यों नहीं पूरी बस को आधे आधे में बांट दिया जाए, ये सबको ये मॉरल दिखाई दिया जाए कि एक महिला चढ़े तो एक पुरुष को सीट से उठना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी शारीरिक संरचना अलग होती है। ये बात घर के पुरुषों को बचपन से बतानी चाहिए कि उसको महीने में 5 डेज बहुत पेन सहन करना पड़ता है। उसका बॉडी इसी ढंग से बना है क्योंकि वो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। वो उसको बच्चे को जन्म देना पड़ता है तो उसका खाना सबसे बेटर होना चाहिए। ये बात हमें घर के बच्चों में पैदा होते सहित उनके मन में धीरे धीरे ये बात डालनी होगी, तो शायद अगले 20 साल में कुछ बेटर हो सके। बहुत खूब मैम, बहुत अच्छा कहा आपने। आप ही की इस बात को लेके मैं वेदोमिता मैम के पास जाना चाहती हूँ कि जो मैटरनिटी लीव है और जो पीरियड लीव है, अभी तो वो गवर्नमेंट ने भी मतलब एलिजिबल कर दिया है, लेकिन बहुत सारे वर्क प्लेसेस में देखा जाता है कि औरतों को ये कहते हुए कि क्या तुम्हें ही पीरियड्स होता है? हमें भी तो होता है, हम भी तो सहते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम ही बच्चे पैदा कर रही हो? हमने भी तो किया है। एग्जैक्टली। तो इस पर गवर्नमेंट को या इस पर एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्टेप लेना चाहिए, एंड व्हाट आर द रूल्स एंड लॉज फॉर दिस? इफ वेदोमिता मैम कैन हाईलाइट सम पॉइंट्स। इसके ऊपर एक पूरा एक्ट है, द इंडियन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961। ये पूरा एक एक्ट है। फिर 2023 में एक पॉलिसी आया है जो प्रेग्नेंट एम्प्लॉइज कैन टेक लीव अप टू 8 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव बिफोर डिलीवरी और 18 वीक्स आफ्टर पोस्ट डिलीवरी। 8 वीक्स बिफोर डिलीवरी, 18 weeks after delivery। ये up to 2 children, 2 बच्चे तक ही ले सकते हैं, तीसरे बच्चे में नहीं मिलेगा, सिर्फ 2। वो हम दो हमारे दो वाला कहानी। ओके, सो ये मिलना ही है। आजकल तो पैटर्निटी लीव भी है, बच्चे होने पर फादर को लीव दिया जाता है टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड द मदर, टू बी विद देम। ये है, ये लेना सीखना चाहिए हमको, ये हम लोगों का राइट है, एक्ट बोलता है। मतलब
12 वीक्स ऑफ लीव ये है। और आजकल तो ऑफिस में भी कर दिया है, एवरी मंथ 2 days का जो पीरियड्स लीव है, बहुत ऑफिसों में किया है ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये ऑफिस के में भी किया हुआ है, आजकल बहुत ऑफिसों में देते हैं दिस लीव। 2 days देते हैं, जस्ट 2 days। No, that is also a great relief because the first 2 days are very बट ये difficult. सबको because देना होता है ना, सब तो नहीं दे रहे। सब बिग ऑर्गेनाइजेशंस you know who are working for whom with a human touch, कुछ organizations है who they are very you know very what to say considerate, and you know what, it is according to the data, the work, you know, माने हम लोग जो काम करते हैं, जो हम लोगों का जो आउटपुट है, the output of a female is far more than that of a male। इसीलिए Exactly. आप बहुत जगह पे आपको हायर पोस्ट में आजकल आपको फीमेल्स नजर आएंगे, राइट। बहुत बड़े बड़े पोस्ट में है। सो दिस शुड फॉलो, एंड दिस विल हैपन हाउ, यू नो, दिस विल हैपन इफ वी एजुकेट द मदर of the house. If a father is educated, only the father is educated. But if the mother is educated, the entire house is educated, the entire family is educated. So वो चीज के ऊपर काम करना जरूरी है, उनको अपना आवाज निकालना कि हाँ मेरी बेटी पढ़ेगी, उसकी शादी में हम खर्चा नहीं करेंगे, उसका सैलरी उसका हस्बैंड का दहेज होगा, पैसा हम लोग खर्चा नहीं करेंगे। देयर आर मेनी मैन हु वांट्स वर्किंग वुमेन, उनका सामान कम चाहिए, वर्किंग लेडी चाहिए। क्यों? आजकल एक आदमी को संसार चलाना मुश्किल होता है, सो दे वांट अ वर्किंग लेडी विद देम। सो पढ़ाओ भाई, शादी के लिए खर्चा मत करो, नहीं चाहिए। एक नारियल 2 माला ले जाओ मंदिर में, फोड़ो और दे दो, हो गया। उसके बाद आप नौकरी कर रहे हो ना, आपको तो कोर्ट में जाकर रजिस्टर करने में कितना पैसा लगेगा? विदाउट लॉयर ऑल्सो यू कैन गो, एंड विद लॉयर ऑल्सो यू कैन गो, रजिस्टर कर लो, हो गया। जहां आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख करना है, वहां पर आपको 10,000 में आपका शादी खत्म। व्हाई वेस्ट? मेरा बेटी अगर सही है तो मैं क्यों कुछ और दूं? मैं अपना बेटी दे रही हूं ना। ये सोच कब आएगी हम लोगों का कि हम बेटी दे रहे, भाई हम कोई पुतला नहीं दे रहे, हम बेटी दे रहे। जो तुम्हारे जो एडुकेटेड है, जिसका अवेयरनेस है, जो समाज में एक जगह है, सोशल स्टैंडिंग्स है, हम बेटी दे रहे, इस बेटी को ले जाओ, यही हमारा सब कुछ है। बस ये सोच होना है, और ये मैम लोग ही कर सकते हैं, हम लोग वकील लोग नहीं कर सकते। वेरी वेल सेड मैम। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कन्यादान क्यों? कन्या क्या दान करने की चीज है? नहीं, विदा करते हैं, लेकिन कन्या दान करने की चीज नहीं है। मुझे लगता है दान, कन्यादान शब्द भी एक अपमान है। एक माँ बाप जो अपनी बच्ची को परी की तरह बड़े करते हैं। आज मैं एक बेटी हूँ, मेरे माँ बाप के आंखों का तारा हूँ। मेरे माँ बाप ने हर एक दिन एक एक दिन जोड़कर मुझे बड़ा किया है, तो मुझे दान में क्यों दे कि कोई और इंसान आकर मेरा कुछ भी कर सके? तो ये चीज स्टॉप होना चाहिए कि नहीं? इस पे मैं सोनाली मैम से जानना चाहूंगी कि जो कन्यादान है वो दान ना होकर एक मतलब हेल्दी रिलेशनशिप में एक लड़की को विथ हर डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट उसको एक रिलेशनशिप के लिए तैयार करके उसको मैरिज के लिए मतलब मैरिज उसका हो, और वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक अच्छे अपने मतलब संस्कार और अपना जो राइट्स है उसको लेके वो अपने ससुराल जाए। तो कन्यादान जो शब्द है इसमें थोड़ी आपत्ति लगती है। आप इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे मैम? जी जी, देखिए ये जो कन्यादान शब्द है, इसका वैदिक अर्थ कन्या को दान करना नहीं है। मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है,
हमारे धर्म ग्रंथों का, लेकिन मैंने इसको पढ़ा है कि इसका अर्थ किसी कन्या को किसी वस्तु जैसे दान करने का अर्थ नहीं है। हम लोग हिंदू रीति में इसको कन्यादान जो कहते हैं, ये एक रस्म है कि आज से ये हमारी जो घर की पूरी संपत्ति थी, ये आज से ये पिता उसके पति को ये अधिकार सौंपता है कि आज से ये उसकी रक्षा, उसका प्रेम, उसकी सुरक्षा, उसका देखभाल सब आज से वो करेगा। तो इसका अर्थ हम लोग अगर एक्चुअल खोज करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत एक अर्थ है। कन्यादान से अर्थ वस्तु दान जैसा नहीं है। ये मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाई की है, इसलिए कन्यादान शब्द की जरूरत नहीं है। इतने वर्षों से जो कन्यादान हुए, लेकिन सारी शादियां टिकी हुई है। लेकिन पिछले 5 सालों से मैं आप लोगों से भी पूछूंगी, अगर शादी के 5 कार्ड आए होंगे साल भर में, आपको हर 3 महीने बाद सुनाई देगा कि उन लोगों में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और शादियां नहीं टिक रही है। तो बात आपने जो कही कि शादियों के लिए तैयार करना, थोड़ा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज, अभी की लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है कि एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, समझ, इन वर्ड का मीनिंग वो ये समझते हैं कि हमको दबना है या झुकना है। हमेशा बात ऐसी नहीं है। जो साथ में पति है ना, वो भी एक इंसान है। हमने पुरुषों को अपना दुश्मन समझ लिया। मैं एक स्कूल के प्रोग्राम में गई, मैंने कहा कि आज क्लास में इतनी अच्छी सजावट हुई है। तो आज ये जब सजावट हुई तो लड़कियों ने कितनी बार लड़कों को बोला होगा कि तू बुद्धू है, अरे तुझे कुछ नहीं आता, तू गधा है, अरे तू चल ना, तुझे तेरा दिमाग है ही नहीं, तू पागल है। लेकिन किसी लड़के ने कोई आपत्ति नहीं की। यही कोई एक लड़का किसी लड़की को बोल दे कि तू बुद्धू है, तो ये नारी शोषण हो जाता है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना अच्छा है, लेकिन गलत दिशा में नहीं। तो हम सबकी सोच को अपने शोज के तहत ये सारी चीजों को लेके हम लाइट एंड साउंड शोज बनाते हैं कि लोगों की मानसिकता बदले। हम फेमिनिस्ट नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट इज अनदर थिंग एंड फेमिनिस्ट इज अनदर थिंग। फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके पति एक रोबोट है। मैंने कुछ दिन पहले कहानी लिखी थी कि बेटी शादी के पहले पापा से कहती है कि हमेशा कि पापा मैं आपकी परी हूँ, कल सुबह से मुझे चाय बना के कौन देगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मुझे मेरे नाश्ता, मेरे लाड़ कौन उठाएगा। तो पापा का कहना है कि तेरा पति है ना, वो करेगा। लेकिन मैं इन लड़कियों को कहना चाहती हूँ, जैसे आप अपने पापा की परी है ना, वो लड़का भी अपनी माँ का राजकुमार है। मम्मी ने भी उसको ऐसे नहीं पाला कि वो शादी के अगले दिन सुबह उठ के चाय बनाने लगे, किसी के पैर दबाने लगे। तो दोनों को एडजस्ट करना है, केवल उसको नहीं। दोनों की पढ़ाई एक जैसी है, दोनों की नौकरी एक जैसी है, दोनों को सिखाना है कि घर लौट के एक साथ खाना बनाओ, एक साथ घर के काम करो, ये कपड़े धोए तो तुम सुखाओ, ऐसे करके आप आगे बढ़ो। ये बात लड़कियों को भी पता होना चाहिए। ये हम लोग इस ढंग से पालते हैं। ये बातें किसी को पुराने जमाने की लग सकती है, लेकिन घर टूटना भी सामाजिक विद्वेष का बहुत बड़ा कारण है। जब फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में जाएंगे, क्योंकि साथी, सभी ह्यूमन बीइंग को साथी चाहिए। अगर आप घर में साथी नहीं है तो बाहर ढूंढेंगे, वहां से फिर क्राइम शुरू होता है। फिर वो क्राइम तो आखिर में डेथ तक ही जाता है। तो उसके बाद आपका मानसिकता सही नहीं है तो वहां पे पुलिस, कानून, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इतना पुलिस फोर्स नहीं है हमारे इंडिया में कि हर एक आदमी पे पुलिस लगाए। पुलिस थोड़ी कहती है आप किसी लड़की को जाके बदतमीजी करो। ये तो काम माता पिता का है जो उन्हें संस्कार दे। तो जब लड़की किसी घर में जाती है तो एक परिवार के पूरे संस्कार लेके जाती है। वैसे ही लड़का जब किसी लड़की को अपने घर लाता है तो वो भी अपने घर के लिए एक बहू लाता है, जो दोनों को दोनों का इज्जत करना है। हमें बच्चों को ऐसे ही पालना है। और बेटा अगर देखे कि मेरे पिता ने मेरी माता का बहुत सम्मान किया तो उस घर में बहू को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं बहुत श्योर हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि उसने अपने पिता को यही। लेकिन जिन घरों में पिता अपने पत्नी से खराब व्यवहार करते हैं, उन्हीं घरों के बच्चे फिर अपनी पत्नी से भी खराब व्यवहार करते हैं। इसलिए ये एक लंबा चेन है, इस चेन से हटके हमें काम करना होगा। और इसके लिए फिर मैं कहती हूँ कि वो घर की माँ को ही ये दाम संभालना पड़ेगा। पिता अगर बदतमीजी करे, बच्चे के देखने से पहले आपको पिता को रोकना होगा कि ऐसे बात करने से फिर आगे एक और जिंदगी खराब होने वाली है। तुमने नहीं मानी मेरी बात तो मैं आपकी कंप्लेन करूंगी।
पहले आपस में तो बात करो, हो सकता है उसके पिता ने भी अपने पिता को देखा हो यही करते। जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिनका बाहर नहीं चलता उनका घर आके पत्नी पे चलता है, और वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर उसको लगता है घर में मेरी पत्नी चुप रहती है, तो बाहर किसी महिला से जब मैं बदतमीजी करूं तो फिर वो भी चुप रहेगी, क्योंकि उनकी मानसिकता वैसे बन चुकी है। तो शुरुआत हर बार घर से करनी होगी। बहुत खूब मैम, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। यस एग्जैक्टली, चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत जी। घर से होनी चाहिए, और बीज अगर अच्छा हो तो फल तो अच्छा होगा ही। तो बिल्कुल बीज बिल्कुल। होना एक बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, और बीज माँ ही बो सकती है। और अच्छा बीज बच्चा पालना इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बच्चा Yes. पालने को आजकल सबसे सेकेंडरी कर दिया गया है। जैसे ही बच्चा छोटा होता है तो माँ को लगता है कि मुझे भी अपने करियर के लिए कुछ करना चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ सिर्फ 18 ईयर्स ही रह सकते हैं। 18 साल में उसने अगर अपने लिए कोई पोजीशन नहीं बनाई समाज में, तो आगे की जिंदगी आपको बच्चे के लिए ही खटना पड़ेगा। उन कुछ सालों को आप पल पल अपनी आंखों में देख के अपने बच्चे को पालिए, जिससे कि आप उसको सही परवरिश दे सके। ये माँ बाप का काम है, आपके बच्चे को पालना समाज का काम नहीं है। आपने पैदा किया है तो उसको अच्छा नागरिक बनाना आपका ही काम है। उसको कुछ साल अपने आप को हर तरह से मैनेज करना पड़े, जॉइंट फैमिली में रहना पड़े। आप कुछ नहीं चाहते, आप जॉइंट फैमिली नहीं चाहते, लेकिन घर में एक आया चाहते हैं दिन भर। ये मानसिकता भी गलत है ना। तो यहाँ से क्राइम्स और प्रॉब्लम शुरू होती है, जब आपस में लड़ना, शराब पीना, एक दूसरे को मारना। आजकल एक दूसरे को मारना ही है, लड़कियां भी आजकल चुप नहीं रहती, वो भी हाथ उठाते हैं। तो वहां से बच्चे का तो मानसिक स्तर बिगड़ गया, अब वो यहाँ से साइको क्रिमिनल बनने के रास्ते में चला गया। तो पूरा जो ये जो एक साइकिल है ना, इसको बदलने के लिए हर एक इंसान को कोशिश करनी होगी। ये मैम आपने बहुत अच्छा बोला है कि जो इंसान अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखता है, वो जी। आगे जाके ही ये सेम व्यवहार करते हैं, ये सेम चीज डालते हैं, क्योंकि वो देख कर आए हैं ना। जो देख के आते हैं, जो सीख के आते हैं, वही तो करते हैं। तभी और आज के दिन में एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मतलब आज के लड़कियां, वो लोग फेमिनिस्ट ज्यादा है, हाउसवाइफ कम है। यस यस। वो Yes. फेमिनिस्ट ज्यादा हो गई है, हाउसवाइफ कम होते हैं। आगे जैसा नहीं है, सुनते नहीं है, हम दबेंगे नहीं, शेयर भी नहीं करेंगे। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है। इसीलिए मैम डिवोर्स का रेट मतलब ऑफिशियली तो इतना ज्यादा है, और मतलब अनऑफिशियली अलग अलग रहना वो Yes. अलग है। ये एक ट्रेंड बन गया है अभी, मतलब कुछ सालों तक रहा, एडजस्ट नहीं हुआ तो डिवोर्स दे दिया, बहुत इजी हो गया है। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिवोर्स को बहुत इजी कर दिया है कि अगर दोनों की सहमति ना हो तो भी डिवोर्स मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि लोग अपने जो हक है, अपना अधिकार है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है। और जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है वो भी कहीं एक मतलब गलत रास्ता अपना रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि घर की माओं को थोड़ा सा एजुकेट होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें मतलब डिग्री वाइज एजुकेशन की जरूरत है, बट द बेसिक moral things should be inculcated among the mothers, so Yes. that they can give their child a healthy life. So as we are running ahead of our time, we have to end our session, though our session is very interesting and there are many things to discuss. And I just hope that one day we'll again meet here and we'll discuss more about these things. Sure. But There is always another time. as we have very limited time and we have to end our session, so I would like Rashmi ma'am to say some
words before ending, and then I'll conclude the session. Yes. Yeah, I was completely involved in what they were talking, and it's such a great pleasure. Dr. Sonali Chakraborty and Vedomita Devji, thank you so much. We heard such valuable information from you both, and also the laws connected to how a woman can use them and stand for herself. And I also liked how Dr. Sonali spoke about Kanya Dan, and how ladies are, because even I have the same thought process that feminism is something which should not go beyond certain things. There are certain things which law has made. You cannot go against the law of motherhood and those emotional connect with the child and start looking at career. There's a time for everything, and there's a right time for everything, and career and children can go hand in hand with proper balance. Yes, Rajni, thank you so much for bringing us such two lovely people, connecting us with them. We hope that Inspiring Indian Women keeps on connecting with both of you, and please, we are very much open to any kind of collaboration. We are in India as well, and we hope to do something constructive in India, and please let us know how can we change the system and bring in positivity in life of women in India. Happiness around. Thank you so much. Namaste, everybody. This is Inspiring Indian Women signing off. Goodbye. Thank you. Namaste. I'm going to end the show. Thank you.